चलिए, स्वागत है आप सभी का। अब हम सॉल्व करेंगे आरटीपी के बाद और स्टूडेंट्स जर्नल के बाद अपन सॉल्व करने वाले हैं एडिशनल सेट ऑफ की स्टडीज। जो 10 की स्टडीज आई है अपन अब वो स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो से, ठीक है। अच्छा, जो इन केस स्टडीज का जो लेवल है, वो आपकी आरटीपी और स्टूडेंट्स जर्नल से बहुत कम है। मतलब वो लेवल की केस स्टडीज़ देख ली, फिर ये केस स्टडीज़ आपको हलवा लगेगी। क्या लगेगी? हलवा। तो अपन इसको हलवे की तरह ही सॉल्व करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत सारे रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपको ऑलरेडी पता है, उसमें कुछ नया नहीं है। केस स्टडी भी छोटी छोटी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। फटाफट से डिस्कस करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं, एमसीक्यूज। Should the auditor send an engagement letter for the audit of current financial year to R&R? Choose the correct statement. Audit का क्वेश्चन है। What type of confirmation request have been designed by the auditor while auditing the trade receivables? Audit का क्वेश्चन है, external confirmations का। What amount of revenue from music rights be recognized on the financial statements for 23-24? FR का क्वेश्चन है। Can Miss Sana Mukherjee be reappointed as an independent director for another term of 5 years? Law का क्वेश्चन। Whether the cost of production of Kaleen Bhaiya, क्या है ये, can be claimed as deduction while filing ITR? क्या 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 चीज़ें बनाते हैं ये लोग बैठ के। Descriptive. Evaluate the intricate value chain of R&R, focusing on the production, acquisition, distribution, and exhibition of movies. Discuss the operational challenges in each stage and how they affect the company's efficiency and overall success. ये SCMP का क्वेश्चन है। Whether the production of movie Simran is at the research or development phase in the relevant Ind AS. Explain the accounting treatment for the cost incurred till date with respect to such movie. Explain the reason for obtaining independent confirmation prescribed under SA 505. What alternate procedures should the auditors Ranveer and Ranbir LLP perform if the response of independent confirmation of trade receivables is inadequate? ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। ऑडिट पूछा है जो आपका कंफर्ट जोन ही रहता है वैसे भी, मतलब एटलीस्ट देख के तो आप लिख ही देते हो ऑडिट, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। फटाफट हो जाएगी ये केस स्टडी। पढ़ते हैं। जर्नी ऑफ राहुल राज फिल्म्स लिमिटेड। Journey of Rahul and Raj Films Limited R&R began in 1994, weaving captivating tales that unfolded on small screen, followed by hitting the big screen in 2000. At the helm of this creative enterprise, Mr. Shah Ratan Kumar, Rani Kapoor, Nutan Dubey orchestrated a symphony of talent and vision, propelling R&R to forefront of India's entertainment industry. Recognized as pioneers of movie production, the company have carved a niche for itself. Niche मतलब एक specific market, enchanting viewers with an array of captivating narrative across various mediums and genres. ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, काटो। ये हिस्ट्री दी है। 1994 में फर्स्ट अपीयरेंस, 2000 में मेजर ब्रेक टू मेक थ्रू, 2014 में लीडर बन गया और 23 में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। The company has established a strong BOD comprising seasoned professionals from diverse backgrounds who bring their expertise and guidance to steer the company towards sustainable growth. The board exercises prudent oversight, ensuring strategic alignment, risk management, and adhere to corporate governance standards. The board of directors and senior management details are given in annexure. पढ़ लेंगे। India's film industry a growing giant. तंबूरा, बेकार मूवीज आती है आजकल, बेकार, थर्ड क्लास। India's film industry is one of the largest in the world, and with more than 2000 motion picture movies released per year, viewed by over 3 billion moviegoers annually. It is 260 billion industry and expected to grow at 600 billion by 2039. ये इंडस्ट्री के बारे में बातें हो रही है। The film industry comprises of motion picture movies produced across India. This industry enjoys mass appeal and is probably the most important content feeder to other businesses in the media and entertainment space. Opportunity in the industry lies in meeting the demands of a new age customer who seeks customized content tailored to their preferences. This shift in consumer behavior presents a favorable environment for the company to thrive and capitalize on emerging opportunities. The industry is witnessing the following mega trends. देखो मैं फटाफट क्यों पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन ऑडिट FR वगैरह से पूछा है, तो ये तो मुझे कहीं काम का लग ही नहीं रहा, तो मैं एक बार को फटाफट से एक सांस में पढ़ रहा हूँ। मेगा ट्रेंड 1,
witnessing the adoption of emerging technologies to offer immersive viewing experiences. Virtual reality and augmented reality are being leveraged. मुझे तो नहीं दिखी आज तक एक भी मूवी ऐसी. Mega trend 2. With the rise of digitalized communities, brands and platforms are actively incorporating the features like Go Live to build online communities. ठीक है. Mega trend 3. The globalization of media entertainment services presents new opportunities for content creators, distributors and advertisers. Key business strategies: expanding horizons. R&R remains committed to producing engaging content, leveraging experience and expertise, and expanding the customer base. The focus on quality, adaptability, and innovation continues to drive success in the dynamic world of entertainment. Movie making broadly involves following steps. ये थोड़ा आंसर में आपको देखने मिलेगा. आइडिएशन, सबसे पहले एक आइडिया जनरेट होता है. प्री प्रोडक्शन में स्क्रिप्टिंग वगैरह होता है. प्रोडक्शन में फिल्म की शूटिंग वगैरह होती है. रिलीज में ये मार्केटिंग पीआर वगैरह करवाते हैं. ठीक है. द की बिजनेस स्ट्रैटेजीज ऑफ R&R आर एज फॉलोस. अब ध्यान देना. Expanding into non-fiction. The company also enhances its focus towards non-fictional content and successfully launched Locked in current year, which emerged as the highest watched movie, showcasing the extensive reach of its business. मैंने एक non-fiction movie बनाई और वो highest watched हो गई. This success encourages to continue emphasizing transforming passive audiences into engaged prospects by striving to bring more out of the box content led movies. ठीक है. Quality over quantity. The company driven by fundamental principle of choosing quality over quantity when it occurs to content. मतलब हमको quality content बनाना है, हमको mass production of movies नहीं करनी है. With decades of experience, enhanced industry knowledge and ability to gauge ongoing and emerging trends have helped the company to serve better. The company have built a better understanding of the choices and preferences of audience, enabling it to consistently deliver content that resonates with them. मैं quality content बनाता हूँ, simple. Enhancing user experience. While the emphasis remains on connecting with more people in a better way, the company also stays aligned with the need of time to adapt to surrounding changes. Technological upgradation has become an integral part of our businesses as the company continue to cater to the entertainment needs of audiences through digital platforms. Refer Annexure B for customer feedback. ये सब नहीं पढ़ना है. स्वॉर्ड्स ऑफ वासेपुर, क्या लॉक्ड हार्ट, बाहुबल, क्या करते हैं यार ये लोग. न्यू प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. इसमें से एक क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ना. द मूवी सिमरन इज करंटली बीइंग कंसेप्चुअलाइज्ड, where the primary focus is on gathering detailed information and developing a solid foundation of the storyline. The project aims to explore the theme of women empowerment. The objective at this stage is to ensure the story is grounded in accurate, relevant, and engaging content. This includes examining historical context, cultural elements, scientific data, and other relevant fields to enhance the authenticity and depth of the narrative. The next steps involve synthesizing the gathered information into a coherent storyline, developing character profiles, and creating a detailed plot outline. Collaboration with subject matter experts will continue to ensure the highest level of accuracy and authenticity in the portrayal of the chosen themes. ये नोलन की मूवी बना रहे हैं लोग कब से. The company decided to abandon the movie. कालीन भैया सही किया. The decision to abandon the movie project was primarily due to the story not meeting the desired standards. वो तो हर मूवी ऐसी होती है इनकी. Despite multiple revisions and considerable effort from writing team, the narrative failed to captivate and engage the way it was envisioned. The lack of compelling and cohesive storyline made it difficult to move forward with the production. The team agreed that it would be best to discontinue the project rather than invest further resources into a script that did not meet the creative expectations. ठीक है, एक मूवी बैन कर दी, एक मूवी में हम काम कर रहे हैं, सिंपल, इतना ही जिस्ट है. Music rights and revenue growth. In India, music is an important feature of motion picture films. Music rights are generally sold to music companies during the production stage itself. मतलब मूवी का जब प्रोडक्शन स्टेज चल रहा है तभी हमने म्यूजिक के राइट्स बेच दिए. As music plays an important role in the marketing of motion picture film, music companies release the soundtrack prior to theatrical release. सही है. These rights were generally assigned to a music company in perpetuity for a fixed fee. मैंने हमेशा के लिए राइट्स बेच दिए एक फिक्स फी के लिए. Where the producer has right to future royalty after achievement of threshold sales by the music company. Royalty income is recognized as earned when communicated confirmed by the music company. मतलब मैंने एक बार में राइट्स बेच दिए
ठीक है, फिर उसका जब सेल्स टारगेट मीट हो गया, उसके बाद मैंने इसकी रॉयल्टी खाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो राइट्स है, जो म्यूजिक है, वो तो मैंने बनाया है, ठीक है। तो सिंपल उसके मैंने रॉयल्टी खाना स्टार्ट कर दी। एक सेकेंड, सिंपल। On 1st September 23, the company grants music rights of 3 upcoming movies to Gold. Gold मतलब एक म्यूजिक कंपनी, for 3000 lakhs receivable on the date of contract signing। मतलब 1 सितंबर को ही 3000 lakhs रिसीवेबल है, ठीक है। The contract condition stipulates that the proportionate amount shall be refunded in case non-release of the music of any of the 3 movies। मतलब 3000 रुपये में दे रहा हूँ, 3000 रुपये अभी बोल रहा हूँ मैं, 3000 रुपये में दे रहा हूँ 3 मूवीज के लिए। अगर तीनों में से एक भी रिलीज नहीं हुई तो ये पूरे 3000 रिफंडेबल होंगे, पूरे 3000। द म्यूजिक राइट्स आर मेड अवेलेबल टू द म्यूजिक कंपनी फॉर द फर्स्ट फिल्म ऑन 1st December 23, सेकेंड ऑन 1st Jan 24, थर्ड ऑन 1st July 24। During FY 23-24, R&R continued to thrive across various mediums, delivering captivating content that resonated with the audiences. The group reported 76% increase in revenue to 593 from 337. Cost of production increased from 511 from 327, with an increase in production hours, crossing the milestone of producing more than 1000 hours of content during the fiscal year. EBITDA loss is 19 crore was narrowed by 84% in the current financial year over 122। मतलब 122 से मेरा 19 करोड़ का लॉस हो गया, नैरो हो गया, लॉस कम हो गया। The company has improved its accounts receivable collection efficiency, reducing sales outstanding from 164 to 160। मतलब ऑन एन एवरेज मेरे पहले 164 डेज के लिए रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग रहते थे, अब 160 डेज के लिए रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रहता है। 4 दिन का मैंने इधर बेनिफिट किया है, बेनिफिट नहीं, मेहनत से मैंने उस कलेक्शन पीरियड को काम किया है। Auditor engagement and concerns. Ranveer and Ranveer LLP are appointed as auditors of the company since last 4 years. The firm's audit and assurance practice in different sectors including media and telecommunications is dedicated to delivering exceptional quality and innovative solutions with the team of experienced professionals who offer in-depth industry expertise and insightful audits, ensuring that the clients receive the highest level of assurance. The firm is an auditor to many of the country's most recognizable brands in the market today. कंसिडरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट, देखो ये यहाँ पे भी नेपोटिज्म आ रहा है, देखो। कंसिडरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट, द एंगेजमेंट पार्टनर इज डेलिब्रेटिंग वेदर अ न्यू एंगेजमेंट लेटर शुड बी सेंट फॉर द ऑडिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 24। मतलब 4 साल से मैं ऑडिटर हूँ, एक और साल को मुझे ऑडिट करवाना है, तो क्या इसके लिए नया एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए या नहीं, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। Till last year, an engagement letter was sent for audit of every financial year despite no change of laws and regulations. Auditors management's responsibilities. मतलब लास्ट ईयर तक हम हर साल एक नया एंगेजमेंट लेटर भेजते थे, इस साल भेजना चाहिए या नहीं, वो लोग ये लोग सोच रहे हैं, ठीक है। During the audit engagement, the auditor observed that the days outstanding are significantly higher than the industry averages and decided to obtain independent balance confirmation of the trade receivables। मतलब जो आपके डेज आउटस्टैंडिंग है ट्रेड रिसीवेबल के, वो इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है, तो हमको क्या करना है, एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, किसका, रिसीवेबल का। This is primarily due to the fact that company works in an unorganized sector and every customer may not be readily maintained updated books and records. Also, lack of interest, customers may generally be reluctant to confirming these balances। देखो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का एक ड्रॉबैक होता है, आप ऑडिट में पढ़ते होगे कि ऑडिटर को कंसिडर करनी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स के सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं। तो वो बोल रहा है कि भाई सामने वाली पार्टी हो सकती है रिलक्टेंट हो, रिलक्टेंट मतलब उसकी इच्छा ना हो क्या करने की, बैलेंस कंफर्म करने की। सब्सिडियरी ऑपरेशंस एंड मार्केट पोजीशन, ये ध्यान से पढ़ना। R&R operates movie theaters in different parts of the country through the following group entities। 1 2 3 4 group entities है मेरी। Mangala Talkies Limited, established 10 years ago in Mumbai with the strategic objective to identify movie theaters at different parts of the country and secure time slot of exhibitions and other logistical aspects। मतलब मेरी जो कंपनी है, मेरी जो कंपनी है जो मूवीज़ बनाती है,
इसकी एक ये सब्सिडियरी है मंगला टॉकीज, जो क्या करती है, ये मूवी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, मूवी डिस्ट्रीब्यूशन का काम। एट द मोमेंट लॉजिस्टिकल रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ अबाउट 50% ऑफ द मूवीज एग्जिबिटेड बाय R&R इज हैंडल्ड बाय दिस सब्सिडियरी। मतलब मेरी जो मूवी रिलीज करवाने का, मैंने मूवी बना दी, फिर रिलीज करने के जो भी लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, डेट्स फाइनलाइज करना, थिएटर्स करना, थोड़ा बहुत मार्केटिंग करना, वो सब ये मंगला टॉकीज करती है। In the recent years, competition between theater owners has intensified. It has been estimated that the total turnover for the movie exhibition in the country has fallen by 5% in the past 2 years. मतलब मार्केट में जो मेरा टर्नओवर है मार्केट का, वो कम हो रहा है। The estimated market share of Mangla Talkies, which operates as the fifth largest movie logistical management company, has fallen from 14% to 13% in the same period. It has a low profit margin. मतलब मेरा जो मार्केट शेयर है वो 1% से कम हुआ है और मेरे प्रॉफिट भी परसेंटेज भी कम है। ठीक है। Prospects for the entertainment industry is uncertain, partly because of lower box office collections, but also because of availability of alternate entertainment avenues. OTT platforms have limited number of movies that are released each year. There is a concern that OTT platform will reduce movie production over time. ठीक है। संगम टॉकीज, ये मेरी दूसरी सब्सिडियरी है। Sangam Talkies was acquired about 20 years ago when it was a newly established company. At the moment, about 50% of the movies released by R&R is exhibited by Sangam Talkies. देखो ये सब्सिडियरी क्या करती है, ये मूवी रिलीज करवाती है, मतलब सारे लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट्स देखती है, और ये मूवीज शो करती है, ये मूवीज दिखाती है। मतलब ये एक थिएटर है, सिंपल एक थिएटर ऐसा समझ लो। ठीक है। R&R used government grants available at that time, पहले गवर्नमेंट ग्रांट्स थी, अब नहीं है, to invest in modernization of theatre. Sangam Talkies is now a leading theatre operator and it attracts a large amount of business from other companies, partly because of its operating capabilities but also because of its relatively low cost. मतलब जो R&R प्रोड्यूस करता है वो तो ये दिखाती है, दूसरे प्रोडक्शन हाउस की भी मूवी दिखाती है। क्यों? इसकी जो इक्विपमेंट है वो मॉडर्न है और दूसरा इसकी कॉस्ट लो है ऑपरेशन करने की। ठीक है। The low costs are achievable because Sangam Talkies uses a relatively modern equipment having larger capabilities. The market is fairly static, increased by just 2% over past 2 years. Annual turnover of Sangam Theatres has risen by 8% in the same period and its profits are also rising. Sangam Theatre also exhibits movies from other movie producers. ठीक है। Payal Movies. Payal was acquired 7 years ago as a strategic response to the declining regional movie market. It operates several movie theaters in several states. ये regional theaters को cater करती है। R&R has experienced problems with Payal Movies since its acquisition. Operating costs have been higher than expected. Over past 2 years, the market has increased by 20%. Annual revenue has risen by 12%. देखो मार्केट में रेवेन्यू बढ़ रहा है, मेरा भी रेवेन्यू बढ़ा है, बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट कम है। क्यों? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है। कहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है? ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है। मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो मेरा प्रॉफिट है वो स्टेटिक है या कम हो रहा है। ठीक है। ओनली स्लाइटली स्टैटिक, धीरे धीरे बढ़ रहा है। विजय स्क्रीन्स लिमिटेड. R&R established a subsidiary, Vijay Screens, to create a platform for documentaries and similar movies created by upcoming directors. Competition in the business is strong and profit margins of Vijay is narrow. But R&R considered that owning a platform for documentary movies would give a greater control over the movies portfolio. मतलब मैंने OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक सब्सिडरी बना दी, सिंपल। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन है। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा था, ये सना मुखर्जी वाला, तो अपन वो देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में एक ही था, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनेक्शर जिसका क्वेश्चन है वही पढ़ते हैं। सना मुखर्जी, an industry veteran over 3 decades of experience in the media and entertainment business, appointed as CEO of Wirenet 19 to drive its transition into a fully integrated media company across broadcast and digital and across entertainment and sports over 8 languages. Her initial appointment as independent director was for 1 year and then reappointed for another term of 5 years, which would end on 30 July 24. The board proposes to appoint her for another term of 5 years. In her appointment proposal, if her appointment proposal is accepted, as per applicable laws, Sana will attain 68 years of age. ठीक है।
और एक पॉइंट्स खाली मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर हमारा जो ग्रुप सीएफओ है वो चेंज हुआ है। अर्लियर दिस पोजीशन वाज हेल्ड बाय अमरीश नाथ टिल लास्ट ईयर। तो ग्रुप सीएफओ अपना चेंज हुआ है, ठीक है, और अपना ग्रुप सेक्रेटरियल हेड भी चेंज हुआ है। तो मतलब मैंने इस एनेक्चर से आपको दो चीज़ें बताई, एक तो ये सना मुखर्जी का क्वेश्चन है तो वो बता दिया, दूसरा अपना ग्रुप सीएफओ लास्ट ईयर चेंज हुआ है और अपना ग्रुप सेक्रेटरियल हेड भी लास्ट ईयर चेंज हुआ है, ठीक है। एनेक्चर बी, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर फीडबैक। ये क्यों पढ़वा रहा हूँ, बिकॉज इससे आपके क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, इसलिए। इस भाई ने फीडबैक दिया है क्या, एट राहुल एंड राज आई बिलीव दैट मूवी गोइंग एक्सपीरियंस डजंट एंड विद द क्रेडिट्स रूल। एवरी विजिट टू संगम थिएटर्स इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज एंड आई एम कमिटेड टू मेकिंग ईच वन बेटर देन लास्ट। मतलब इसने गुड फीडबैक दिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, वाइल आई हैव ऑलवेज एंजॉयड वॉचिंग मूवीज एट मंगला टॉकीज माई रिसेंट विजिट लेफ्ट मी विथ मिक्सड फीलिंग्स। इसने एक खराब फीडबैक दिया है। द मूवी वॉज फैंटास्टिक बट आई नोटिस दैट द सर्विस quality has slipped a bit. The concession stand took longer than usual and the seating wasn't comfortable as I remember। ठीक है, एक अच्छा फीडबैक है, खराब फीडबैक। ठीक है यार, फटाफट खत्म करते हैं इसकी स्टडी को, कुछ नहीं है इसकी स्टडी में, पढ़ लो फिर अपन करते हैं। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, बहुत इजी से एमसीक्यू से, ठीक है। एमसीक्यूज, शुड द ऑडिटर सेंड एन एंगेजमेंट लेटर फॉर द ऑडिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर टू आर&आर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ऐसे 210 ऐसे 210 आप अगर पढ़ते हो तो आपको एक लाइन बोली गई है कि आपको ऑडिटर को, मैनेजमेंट को एक एंगेजमेंट लेटर शेयर करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड ये भी बोलता है कि आप हर साल एक नया एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजोगे तो चलेगा। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, हर साल एक नया एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजोगे तो चलेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे आपको मैंडेटरीली एक नया एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा। उन कंडीशंस में से एक कंडीशन है कि अगर मैनेजमेंट का कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट का कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, तो आप लोगों को एक नया एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा। अच्छा, ये बीओडी का कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताया था, तब मैंने एक बात बताई कि ग्रुप सीएफओ और ग्रुप सेक्रेटरियल हेड चेंज हुए। अच्छा, ये दोनों मैनेजमेंट के की पोजीशन में आते हैं, सीएफओ और सेक्रेटरियल हेड। तो सिंस दीज गाइज हैव चेंज, आपको एक नया एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है, न्यू एंगेजमेंट लेटर, ऑप्शनल वाला काट दो, कंपनीज एक्ट मैंडेट नहीं करता ये काट दो, शुड बी सेंट एवरी ईयर ये भी काट दो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, ऐसे 210 मैंडेट्स ऑब्टेनिंग अ न्यू एंगेजमेंट लेटर व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैनेजमेंट। कौन कौन चेंज हुआ है भाई, मेरा ग्रुप सीएफओ चेंज हुआ है एंड मेरा ग्रुप सेक्रेटरियल हेड चेंज हुआ है, ठीक है, ठीक है, सिंपल सा था। आ जाओ, व्हाट टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हैव बीन डिजाइंड, व्हाट टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हैव बीन डिजाइंड। एक मिनट है, ये चल क्यों नहीं रहा, एक सेकंड, मेरी पेंसिल की बैटरी गई, रुको। डिजाइंड बाय द ऑडिटर, यहाँ चल रहा है, एक मिनट, चलो जाने दो, क्या हो रहा है, हाँ। Designed by the auditor while auditing trade receivables. What kind of confirmation design has been designed by the auditor for auditing the trade receivable? इधर आओ, इधर आओ, क्या लिखा है, the confirmation letter requests the customer to respond directly to the auditor indicating whether agree or disagree। agree or disagree इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट as response is to be provided whether or not agreed by the respondent। मतलब रिस्पोंडेंट अग्री करता है नहीं करता है, वी डोंट केयर, हमें एक रिस्पॉन्स देना है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। यार ये सब चीज़ें ऑडिट में आप पढ़ते ही हो, इंटर में भी पढ़ते थे, ठीक है, सिंपल। व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम म्यूजिक राइट्स इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर FY 23-24। आ जाओ, 1 सितंबर 23 को 3,000 लाख के, मैं 3,000 रुपये बोल रहा हूँ,
₹3000 के मैंने राइट्स बेचे 3 फिल्म्स के लिए, करेक्ट। और अगर मैंने एक भी फिल्म रिलीज़ नहीं की तो पूरा रिफंडेबल हो जाएगा, पूरा रिफंडेबल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मैं जैसे जैसे एक एक मूवी रिलीज़ करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं एक एक मूवी रिलीज़ करता जाऊंगा, मैं हज़ार हज़ार तो रिकॉग्नाइज कर ही सकता हूँ, बिकॉज ये जो 3 है, ये 3 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तो आप 1 दिसंबर को जब फर्स्ट मूवी रिलीज़ किया, आप 1000 बुक कर दो। 1 जनवरी को आपने जब सेकंड मूवी रिलीज़ किया, 1000 रिकॉग्नाइज कर दो। अच्छा, आपने थर्ड कब रिलीज़ की, 1 जुलाई को, तो आप ये 1000 रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो आउट ऑफ 3000 यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज 1000, यू कैन रिकॉग्नाइज 2000। बाई 31 मार्च 2024 आप ₹2000 रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सिंपल आंसर, कुछ नहीं है यार इसमें, प्लीज डोंट थिंक कि मैं उड़ा रहा हूँ। कैन मिस सना मुखर्जी बी रीअपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years? ये या एक दो केस स्टडी पहले ही बताया था, ये प्रोविजन क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की 2 टर्म, कंसेक्यूटिव 2 टर्म के लिए वो अपॉइंट हो सकता है। और अगर 1 साल से कम के लिए अपॉइंट हुआ है तो उसको टर्म माना जाएगा, 1 साल से कम के लिए अपॉइंट हुआ है तो उसको टर्म माना जाएगा। तो 1 साल की 1 टर्म, 5 साल की 1 टर्म, तो ये तीसरी टर्म के लिए अपॉइंट नहीं हो सकती, और एज फैक्टर रेलेवेंट नहीं है। ये सेम क्वेश्चन एक दो केस स्टडीज पहले आया था जिसमें एज फैक्टर दिया था जो रेलेवेंट नहीं था, ठीक है। अपॉइंटेड फॉर 2 consecutive टर्म ईच बीइंग 5 years, दैट इज 10 years, कैन रीअपॉइंटेड, नहीं ये गलत ऑप्शन है। कैन बी अपॉइंटेड, ये भी गलत ऑप्शन है। कैन बी अपॉइंटेड, ये भी गलत ऑप्शन है। Each term up to 5 years. Sana Mukherjee cannot be reappointed as independent director since she has completed 2 consecutive terms. Appointment for term less than 5 years is treated as 1 term. Simple. ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। एज पर MCA लेस देन 5 years इज इक्वल टू 1 term। ये MCA का क्लैरिफिकेशन है, लॉ में नहीं लिखा है, ये क्लैरिफिकेशन आया था। ये सेम क्लैरिफिकेशन ऑडिट एंड ऑडिटर हर जगह एप्लीकेबल है। Whether cost of production of कालीन भैया can be claimed as deduction while filing ITR of the company। देखो DT का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉर्नरिंग किया हुआ है, थोड़ा सा कॉर्नरिंग किया हुआ है। CBDT ने एक सर्कुलर दिया हुआ है, CBDT ने एक सर्कुलर दिया है, सर्कुलर नंबर 16 डेटेड दिस। क्या बोलता है, क्या बोलता है कि अगर आपने कोई मूवी प्रोडक्शन किया है, स्टार्ट किया था और वो अबैंडन हो गया, अबैंडन हो गया, अबैंडन हो गया, तो उसको केपेक्स नहीं मानेंगे, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, और उसका फुल डिडक्शन मिल जाएगा, फुल डिडक्शन मिल जाएगा। देखो ये जो रूल 9A है, रूल 9A, ये स्पेसिफिकली मूवी प्रोडक्शन पे लगता है, और ये रूल 9 है थोड़ा कॉर्नर्ड प्रोविजन है, बिकॉज जनरली ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, ऐसे प्रोविजन हम रेगुलर जब DT पढ़ते हैं तब शायद नहीं कवर करते, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो बोलता है कि आपने मूवी पे जितना भी आपने खर्चा किया है, मूवीज पे जितना आपने खर्चा किया है उसको एक केपेक्स माना जाएगा। लेकिन लेकिन अगर आपने मूवी को बीच में अबैंडन कर दिया तो उसको केपेक्स नहीं माना जाएगा, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, और आपको उसका फुल डिडक्शन मिल जाएगा, आपको उसका फुल डिडक्शन मिल जाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन अबैंडन्ड फीचर फिल्म इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अलाउड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो इसको केपेक्स नहीं माना जाएगा क्योंकि केपेक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के इसका डिडक्शन दे देंगे। अच्छा, ये बहुत स्पेसिफिक, बहुत पिन पॉइंट सर्क्यूलर है, तो आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अबैंडन मूवी कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन व्हाइल फाइलिंग ITR। ये बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आया तो ये टिक मार्क के आना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो आपके MCQs हो गए बातों बातों में। Descriptive questions. Evaluate the intricate value chain of R&R, focusing on production, acquisition, distribution, and exhibition of movies. Discuss the operational challenges in each stage and how they affect the company's efficiency and overall success. अच्छा, वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस आप पढ़ते हो SCMP में, ठीक है। और आई गेस इंटर के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी वैल्यू चेन एनालिसिस आता है। प्रॉब्लम क्या है कि इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है ना इसका, इस क्वेश्चन का, वो बहुत अजीब
और कुछ एक्सटेंट तक गलत भी है। मतलब वैल्यू चेन में दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, मैं बता रहा हूँ आपको सब कुछ। एक्टिविटीज़ होती है प्राइमरी और सपोर्ट, प्राइमरी और सपोर्ट। प्राइमरी में कुछ एक्टिविटीज़ होती है, सपोर्ट में कुछ एक्टिविटीज़ होती है। इन लोगों ने जो आंसर लिखा है वो मन से लिखा है, कुछ एक्टिविटीज़ को ऊपर नीचे किया है, कुछ जगह पे गलत चीज़ें लिखी है। तो मैंने क्या किया है, इसका खुद से एक आंसर ड्राफ्ट किया है। मैं उसी आंसर से पढ़ाऊँगा, आपके पास चॉइस है। आपको अगर मेरा आंसर पसंद आता है आप वो रखना, बाकी अगर इंस्टीट्यूट का आंसर पसंद आता है तो वो रखना। देखो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी तो कम होती है, आए तो इनका आंसर लिखना है इनका रखो, मेरा लिखना है मेरा रखो, ठीक है। आजा, वैल्यू चेन एनालिसिस क्विकली बता रहा हूँ। कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस क्यों होता है? अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, बाकी स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं, गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए एक वैल्यू क्रिएट करनी है। क्या करनी है? एक वैल्यू क्रिएट करनी है। सर गवर्नमेंट के लिए, भाई गवर्नमेंट आपको बोलेगी ना कि ये काम करो, टैक्स दो, ये करो, वो करो। तो एक वैल्यू क्रिएट करनी होती है। किसको? एक बिजनेस को एक वैल्यू क्रिएट करनी होती है, स्टेक होल्डर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, सबके लिए। अब ये वैल्यू कैसे क्रिएट होती है? तो उसकी एक चेन है, उसकी एक चेन है। चेन में क्या है? दो टाइप की एक्टिविटीज़ है। एक तो प्राइमरी एक्टिविटी, अभी समझ जाओगे आप लोग, प्राइमरी एक्टिविटी, और एक सपोर्ट एक्टिविटी, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को केटर करते हैं। अच्छा, आपकी अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो उसमें वैल्यू कैसे क्रिएट होती है? वैल्यू कैसे क्रिएट होती है? सबसे पहले आप RM प्रोक्योर करोगे, प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करके आप उसको सप्लाई करोगे, मार्केटिंग करोगे, एंड आफ्टर सेल सपोर्ट दोगे वापस से। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो आप क्या करोगे? RM प्रोक्योर करोगे, प्रोडक्शन करोगे, फिर उस RM को कस्टमर तक पहुंचाओगे, मार्केटिंग एंड सेल्स करोगे, और आफ्टर सेल सपोर्ट दोगे, ठीक है। तो भाई प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होता क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मतलब प्रोक्योरमेंट करना। अच्छा, प्रोक्योरमेंट सिर्फ मटेरियल का नहीं होता। अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री हूँ तो मुझे किसी की सर्विसेज प्रोक्योर करनी है आगे सर्विसेज देने के लिए। मुझे अगर सर्विस देनी है तो मुझे किसी की सर्विस लेनी पड़ेगी। मुझे अगर सर्विस देनी है तो किसी की सर्विस लेनी पड़ेगी, करेक्ट। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग बोला। अच्छा, सर्विस है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, उसके ऑपरेशंस होते हैं सर्विस प्रोवाइड करना। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग है तो माल पहुंचाना, सर्विस इंडस्ट्री है तो वो सर्विस पहुंचाना, किस तक? कंज्यूमर तक। मार्केटिंग एंड सेल्स में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग एंड सेल्स क्या होता है कि भाई आप कस्टमर को कैसे आउटरीच करते हो, कस्टमर को कैसे आप आउटरीच करते हो, उनको क्या क्या सर्विसेज देने का प्रॉमिस करते हो, एंड आफ्टर सेल्स, सेल्स होने के बाद आप क्या क्या सर्विसेज देते हो। तो ये होगी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़। सपोर्ट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। सिंपल, अगर अगर मुझे अच्छी सर्विस देनी है तो मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब मेरे पास उतने लोग, मैन, मशीन, मटेरियल सब होना चाहिए जिससे मैं वो सर्विस दे पाऊँ। ह्यूमन रिसोर्सेज, मेरे पास एम्प्लॉयज़ अच्छे होने चाहिए सर्विसेज देने के लिए। मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मतलब देखो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है तो उसके पीछे बैक एंड में सपोर्ट एक्टिविटीज़ चलती है। प्रोक्योरमेंट, देखो परचेस एंड प्रोक्योरमेंट का फ़र्क समझ लो। परचेज मतलब कोई चीज़ खरीदना, और प्रोक्योरमेंट मतलब वो खरीदने की पूरी प्रोसेस, खरीदने की पूरी प्रोसेस मतलब नेगोशिएशन, वेंडर मैनेजमेंट, पेमेंट्स वगैरह, उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट, ठीक है। और ये हो गई आपकी सर्विस एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटीज़। सपोर्ट में क्या आया? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और व्हाट? प्रोक्योरमेंट। तो आपकी प्राइमरी 5, सपोर्ट 4, प्राइमरी 5, सपोर्ट 4, ठीक है। अपनी केस स्टडी में, अपनी केस स्टडी में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या? मुझे मूवी बनानी है, मुझे एक मूवी बनानी है तो मुझे कंटेंट राइटर्स हायर करने पड़ेंगे, मुझे स्क्रिप्ट्स खरीदनी पड़ेगी। मैं तो प्रोडक्शन हाउस हूँ तो मैं क्या करूँगा, या तो कंटेंट राइटर को उठा लूँगा या उससे स्क्रिप्ट खरीद लूँगा। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में होता क्या है? स्क्रिप्टिंग एंड कंटेंट। क्या बोलता है? द कंपनी हैज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ चूजिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। द कंपनी हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स थ्रू देयर एक्सपीरियंस। मतलब देखो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आता क्या है? स्क्रिप्टिंग एंड कंटेंट। और उसको कंपनी करती कैसे है? भाई कंपनी के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है तो वो अच्छे राइटर्स को हायर करते हैं, और उनका प्रिंसिपल है क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। आंसर थोड़ा अजीब लगेगा इंस्टीट्यूट का, बिकॉज अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा होता कि आइडेंटिफाई करो एक्टिविटीज़ तो आप इतना लिख के आ जाते। 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, और ये 5 पॉइंट, ठीक है।
बट आपको बोल रहा है असेस करना है, आइडेंटिफाई और असेस, आपको असेस करने बोला है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ड इवेल्युएट लिखा है। इवेल्युएट मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करने बोला होता ना तो आप नॉर्मल लिख के आ जाते, लेकिन इवेल्युएट बोला है तो थोड़ा बहुत आपको इन्हीं चीज़ों को केस स्टडी में से इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत ज्ञान लिखना पड़ेगा, इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। ऑपरेशन में क्या है, मूवी बनानी, स्क्रिप्ट आ गई है, मूवी बनानी है, क्या करना है। ऑपरेशंस इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। एक तो प्री प्रोडक्शन में स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, ऑडिशन ऑफ आर्टिस्ट हो गया, सेट बनाना है, फिल्म शूटिंग, विजुअल इफेक्ट्स और डबिंग, ये हो गया प्रोडक्शन में। अब केस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में R&R इज कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग एंगेजिंग कंटेंट एंड लेवरेजिंग एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। द फोकस इज ऑन क्वालिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। ये लाइंस मैंने केस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट से लिखी है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, अपना मंगला टॉकीज। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, मंगला टॉकीज। प्रेजेंटली 50% ऑफ द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इज हैंडल्ड बाय मंगला टॉकीज विच इज अ मूवी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कंपनी। ये लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कंपनी है। लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, आपने जो चीज़ बनाई है, जो कंटेंट बनाया है, उसको आपको कस्टमर तक पहुंचाना है। तो कस्टमर तक दूसरे कौन लोग पहुंचाते हैं, थिएटर्स। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो तो पहुंचाती है, फिर थिएटर्स जो उसको शो करती है, संगम टॉकीज। 50% ऑफ मूवीज प्रोड्यूस बाय R&R आर एग्जिबिटेड बाय संगम टॉकीज विच इज़ अ लीडिंग थिएटर ऑपरेटर हैविंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। पायल मूवीज, इनके पास रीजनल थिएटर्स है, रीजनल बहुत सारे स्टेट्स में इनके थिएटर्स है। हावेवर द ऑपरेटिंग कॉस्ट हैज बीन हायर देन एक्सपेक्टेड, कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉफिट्स हैव नॉट इंक्रीज इन द लाइन्स विथ इंक्रीज इन मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू। सिंपल, आइडेंटिफाई करना ईजी है, थोड़ा बहुत केस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में अपन लिख रहे हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग सेल्स रिमेन्स विद मंगला टॉकीज बिकॉज वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है विच इज द मूवी लॉजिस्टिक्स कंपनी। मोर ओवर द कंपनी इज एक्सपैंडेड इन टू नॉन फिक्शन कंटेंट टू इंक्रीज द मार्केट साइज एंड रीच। देखो, मार्केटिंग मतलब मैंने जो बनाया है प्रोडक्ट, उसका तो मैं मार्केटिंग कर ही रहा हूँ, लेकिन मार्केटिंग में वो भी होता है कि मैं दुनिया को बताऊँ कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, दुनिया को मैं बता रहा हूँ कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। वो करने के लिए मैंने क्या किया, मैं नॉन फिक्शन में एक्सपैंड हो गया। इससे क्या है, मेरा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ गया। जो नॉन फिक्शन मूवीज देखते हैं जो लोग, वो अब मेरे पास आएंगे। थ्रू विजय स्क्रीन्स द कंपनी एंटर्ड इनटू कंटेंट रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्रीज एंड मूवीज सिमिलर टू इट। सिमिलर टू इट मतलब डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज एंड वैसा कंटेंट, OTT टाइप का कंटेंट। Documentaries and movies similar to it. The company may consider strategies like integrating with OTT platforms to reach broader audience. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल, एक तो मैंने जो फिल्म्स बनाई है उसका मार्केटिंग कर रहा हूँ, दूसरा मैं अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा हूँ। कैसे, एक तो मैं नॉन फिक्शन में एक्सपैंड कर दिया और फिर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज एंड OTTs में एक्सपैंड कर दिया। सिंपल। आफ्टर सेल्स, देखो आफ्टर सेल्स में ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, फिर भी अब कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट को लिखना था, तो इंस्टीट्यूट ने वो जो 2 फीडबैक है उसके बारे में लिखा है। After sales services is the tool for enhancing the customer satisfaction and create a different brand value. The company should constantly obtain and respond to feedbacks and make necessary adjustments and improvements to maintain high standard of service. मतलब जो 2 फीडबैक है, वैसे आप बहुत सारे और फीडबैक्स लो और फीडबैक के हिसाब से एडजस्टमेंट करो किस में, आपकी सर्विस में। सपोर्ट एक्टिविटीज़ प्राइमरी हो गई 5, कौन सी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सपोर्ट। अब आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज़ में क्या है, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फर्म होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन एंटर्ड बाय द कंपनी। स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन क्या था, विजय स्क्रीन्स, पायल टॉकीज, और वर्टिकल इंटीग्रेशंस क्या था, वो वाला मंगला टॉकीज, जो मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन को हायर कर लिया। मॉडर्नाइजेशन ऑफ संगम टॉकीज has been successful. Similar effort should be done across all the subsidiaries, especially those who are facing inefficiencies and high operational costs. मतलब क्या बोल रहा है कि आपने यहाँ पे संगम थिएटर्स में मॉडर्नाइजेशन किया, तो आप जहाँ पे और ज़रूरत है, पायल टॉकीज जहाँ पे हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, आप वहाँ पे भी मॉडर्नाइजेशन करो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर मेंटेनिंग हाई ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स एंड अडेप्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि पायल मूवीज में ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई है, तो वहाँ पे आप क्या करो, ह्यूमन रिसोर्स में कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे इसके ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाए, निकम में एम्प्लॉयज़ को निकाल दो। सिंपल। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन इंटीग्रेटिंग न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन इट्स ऑपरेशंस। द कंपनी शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन R&D फॉर इनोवेटिव एग्जीबिशन फॉर्मेट्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एडिशनल वैल्यू। ये सिर्फ
ये सारी लाइन्स है ना इंस्टीट्यूट ने सिर्फ बकवास लिखी है, बिकॉज ये सब चीज़ें ना R&D ऊपर केस स्टडी में है नहीं। क्वेश्चन बना दिया, फिर कुछ तो लिखना है तो ये सब लिख रहा है। प्रोक्योरमेंट, purchasing IPRs for fictional and non-fictional genres, collaborating with accomplished directors, bringing renowned actors on board, etc. can be some steps to optimize the procurement. देखो प्रोसेस ऑफ परचेज, अगर मैं IPR खरीद लिया किसका, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल जॉनर्स का, तो फिर जितनी भी इन जॉनर्स में मूवीज बनेगी वो मेरे पास आएंगी, क्यों, मेरे पास उसके राइट्स है। कोलैबोरेटिंग विद एकम्प्लिश डायरेक्टर्स, मैंने उन डायरेक्टर्स को ही अपने बोर्ड पे बिठा दिया है ताकि वो लोग जो काम करे वो सिर्फ मेरे लिए करे, ताकि मेरा प्रोक्योरमेंट और ईजी हो जाए। अच्छे एक्टर्स को मेरे बोर्ड में लगा दिया जिससे मेरा प्रोक्योरमेंट ईजी हो जाए। द कंपनी शुड डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कंटेंट प्रोड्यूसर्स एंड टेक्नोलॉजी सप्लायर्स टू एंश्योर टाइमली सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी इनपुट्स। मतलब क्या करो, प्रोड्यूसर और टेक्नोलॉजी सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर लो कि भाई मुझे इतना इतना मटेरियल टाइम पे चाहिए तो तू मुझे दे देना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। ऐसा मत सोचना उड़ाया, ये क्वेश्चन में कोई क्वालिटी ही नहीं है। यू गाइज नो कि जो क्वेश्चन अच्छा होता है वो मैं कितना डेप्थ में डिस्कस करता हूँ। वेदर द प्रोडक्शन ऑफ मूवी सिमरन इज एट रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट विथ रिस्पेक्ट ऑफ सेड मूवी। देखो सिमरन मूवी, अच्छा देखते हैं। is currently being conceptualized, where the primary focus is on gathering detailed information and developing a solid foundation for the storyline. The project aimed to explore the theme of women empowerment. The objective at this stage is to ensure that the story is grounded and accurate, relevant, and engaging content. This includes examining historical context, cultural elements, scientific data, and other relevant fields to ensure the authenticity and depth of narrative. The next step will be this. मतलब देखो सिंपल, आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कंपनी ये वो जो मूवी है वो अपने रिसर्च फेज में है या डेवलपमेंट फेज में, तो हम बोलेंगे रिसर्च फेज में है। क्यों, अभी तो उस मूवी का सिर्फ कॉन्सेप्ट बन रहा है, अभी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हुई है जिसको हम डेवलपमेंट बोल सके, ना ऑडिशंस हुए ना स्क्रिप्टिंग हुई है, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कंसेप्चुअलाइज हो रही है वो मूवी, तो उसको रिसर्च फेज बोलेंगे। क्यों, नो कॉस्ट, सॉरी, अब अपन उसको रिसर्च फेज बोलेंगे। क्यों, देखो हिस्ट्री एग्जामिन हो गई, कल्चर एग्जामिन हो गया, डेटा अदर फील्ड्स सब कर लिया, लेकिन नो एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ मूवी हैज़ स्टार्टेड। मतलब ना मैंने ऑडिशंस किया है, ना मैंने स्क्रिप्टिंग की है, ना मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया, ना मैंने शूटिंग की, तो डेवलपमेंट फेज तो स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, इंडेस 38 क्या बोलता है, रिसर्च फेज में जितने भी खर्चे हुए रिसर्च फेज में उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, लेकिन डेवलपमेंट फेज के जो एक्सपेंसेस हैं डेवलपमेंट फेज के वो आप कैपिटलाइज कर सकते हो अगर वो इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल है और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है। ये तो सिंपल है, ये तो स्टैंडर्ड रिकग्निशन का क्राइटेरिया है कि भाई एसेट आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए और फ्यूचर बेनिफिट आना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट फेज का आप तो ही कैपिटलाइज कर सकते हो जो ये चीज़ें सेटिस्फाई हुई है, लेकिन अपनी मूवी तो डेवलपमेंट फेज तक पहुंची ही नहीं है, डेवलपमेंट फेज तक ही नहीं पहुंची, वो रिसर्च फेज में ही है, तो क्या कोई खर्चा कैपिटलाइज हो सकता है, नहीं। तो क्या लिखा है, सिंस नो एक्टिविटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ मूवी हैज स्टार्टेड नो कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज, सिंपल। Explain the reason for obtaining independent confirmations prescribed under SA 505. What alternative procedures should the auditors Ranveer and Ranveer LLP perform if no response is received or response is inadequate? देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन की थोड़ी कथा की है, ठीक है। यहाँ पे भी सबसे बड़ा रीज़न एक्सटर्नल कंफर्मेशन में जाने का ये है कि भाई मेरे जो डेज आउटस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री एवरेज से मेरे जो डेज आउटस्टैंडिंग है वो ज़्यादा है, वो एक रीज़न है कि भाई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन मुझे लेना चाहिए। अगर मुझे इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन मिला नहीं या इनएडिक्वेट था तो मुझे क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्स टू द रिस्पॉन्सेस
to obtain evidence necessary to reduce audit risk to low level. Alternative procedures कौन सी होंगी, क्या होगा नेचर? द नेचर ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म वेरीज अकॉर्डिंग टू द अकाउंट एंड असर्शंस. देखो वो बोल रहा है कि अगर आपको कंफर्मेशन नहीं आया या इनएडिक्वेट आया तो आपको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स करनी पड़ेगी. ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स का नेचर कैसा होगा? वेरीज अकॉर्डिंग टू अकाउंट एंड असर्शन. लेकिन ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कौन कौन सी हो सकती है? एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिक्वेंट कैश रिसीट्स और अदर एंटिटी डॉक्यूमेंटेशन टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस असर्शन. देखो सिंपल, मेरा 31 मार्च को 1000 रुपये का रिसीवेबल था, ठीक है. मैंने इस भाई को कंफर्मेशन भेजा, इसने मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन 30/4 को इसका पैसा आ गया, 1000 रुपये रिसीव हो गए बैंक में. तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, अच्छा इसका मैंने एविडेंस है मेरे पास, मैंने बैंक अकाउंट देख लिया, मैंने रिसीट देख ली, ठीक है. तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि ये 1000 रुपये जो आए उसका ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च 24 को एग्जिस्ट करता था? यस. तो मेरे एग्जिस्टेंस असर्शन पे मुझे कंफर्ट आ गया. कैसे भाई? मैंने सब्सिक्वेंटली रिसीट देख ली कि भाई मुझे 31 मार्च को कंफर्मेशन नहीं मिला था, लेकिन मुझे 30/4 को मिल गया. क्यों? इसने मुझे पैसे दे दिए वो वाले. तो एग्जिस्टेंस असर्शन पे मुझे ऐसा कंफर्ट आया. तो ये होती है ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. प्लस आप इसका इनवॉइस देख सकते हो, ठीक है. तो ये सब ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स होती है, आप ऑडिट में अच्छे से पढ़ते हो. The auditor should evaluate the combined evidence provided by the confirmation and alternative procedures performed to determine whether it is sufficient to achieve our audit objectives. ठीक है. If the combined evidence is not sufficient, the auditor should request additional confirmations or perform other tests. मतलब ठीक है, ये जेनरिक सा क्वेश्चन है, ऐसे 505 का आप पढ़ लेना, ठीक है. सिंपल सी केस स्टडी थी, कुछ खास इसमें था नहीं. और ये जो केस स्टडी को जितना टाइम देना चाहिए अपन ने उतना ही दिया है, ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि इसकी कोई लेवल ही नहीं था इस केस स्टडी का, ठीक है. देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी नेक्स्ट वीडियो. चलो बाय बाय.